Hello and welcome everyone. So today we are going to see the pre-primary education. Actually, we were waiting for others also to get in, but let's dive in. So the pre-primary education. प्री प्राइमरी एजुकेशन में क्या की स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है? अब तक हम लोगों ने देखा था, जो भी एजुकेशनिस्ट बताए थे थियोरीज, एजुकेशन क्या होता है, व्हाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट. बट हियर वी हैव टू फोकस एंड अंडरस्टैंड that the life skills and the foundation skills are set up only during the pre-primary or the early childhood period. When we talk about the foundation stage, as per NEP, it starts from 3 years till 8 years. You will be having an NEP session also in this class. So, whenever it will be, we'll be giving you an opportunity to know that as well. So, what are the main skills which are important for the holistic development? एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या skills important है? इनको हमें जानना, समझना और फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सबसे पहला स्किल कॉग्निटिव स्किल, बौद्धिक क्षमता. द वेरी फर्स्ट बौद्धिक क्षमता जो है हमारी, उसके लिए हमें थिंकिंग स्किल, सोचने समझने की क्षमता, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या है उसके निवारण की क्षमता जो है, वो बच्चे में वो आती है जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या उनके कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट होता है. ओके. ना, अब बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो बच्चा जो है उसके अंदर ये कॉग्निटिव स्किल्स, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे आते हैं. हाउ डज द चाइल्ड डेवलप्स देयर मेंटल एबिलिटी और द कॉग्निटिव स्किल्स. The child can perform the activities like puzzles, sorting games, and different types of activities where mental ability is involved, as well as in the problem solving, logical thinking, and reasoning activities, solving the patterns, sitting, seriating, sorting. All these types of activities are going to help the child in the mental development of the child. And it is very, very important that in a pre-primary education, the basic literacy and numeracy concepts such as letters and numbers are should be there for the understanding of the child. Simple mathematical operations like counting and basic calculation, addition and subtraction. Then before that, the number recognition and the numeracy concepts also. These all things are helping the child to develop their problem solving skills as well as their thinking skills. See, this is the thing which cannot be mug up, right? Numeracy skills has to be performed. Logical reasoning happens and then only the brain develops. So numeracy activities and the seriating, sorting, puzzle activities usually help the child for the mental development. Then language. For the language development, this is the second pillar of the holistic development. As the first pillar is the mental development, second is the language development. As the child has an absorbent mind whenever the child is very small, the child is not able to speak as the child takes birth. बच्चा जन्म लेते ही बोलने नहीं लगता है ना. उससे हम जो हमारे आसपास हो रहा होता है वो उस वातावरण को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, वो उस वातावरण की लैंग्वेज को, उस वातावरण के एनवायरनमेंट को, उस वातावरण के कम्युनिकेशन को सुनता है, समझता है और उसी को प्रैक्टिस करता है अंदर ही अंदर. और फिर वो धीरे 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 एक एक दो दो वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग. लैंग्वेज स्किल्स जो है ये 4 स्किल्स से डेवलप होती है. LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सो ये प्रॉपर इसी ऑर्डर में जाएगा टीचर्स. इसको हमेशा याद रखिएगा. कभी भी कोई भी आपसे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछे, यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 लेटर्स, दैट इज LSRW. ओके, ये 4 लेटर्स आपको कभी नहीं भूलने हैं. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये ऑर्डर में ही जाएगा. पहले लिसनिंग आएगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग. ये इसी ऑर्डर में बोलना है. क्यों? आप एक छोटे बच्चे को याद कीजिए. रिकॉल अ वेरी स्मॉल चाइल्ड just who has just taken a birth. The child listens to the environment first.
Second, the child starts speaking. Third, the child starts reading, and then the child starts writing. ऐसा नहीं होगा कि आप लैंग्वेज स्किल में पहले आप राइटिंग कर दो और बाद में लिसनिंग डाल दो. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले आपके अपने आसपास के वातावरण को सुनता है, समझता है, एब्जॉर्ब करता है अपने आसपास की लैंग्वेज को. आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि क्यों कोई बच्चा होता है जो अपनी मातृभाषा जो है उसको वो बच्चा काफी अच्छी तरीके से बोल लेता है. मातृभाषा में यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं कर रही हूँ. हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय मातृभाषा हिंदी है. लेकिन अगर हम हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग की बात करते हैं, वो होती है वही भाषा जिस क्षेत्र में, जिस प्रांत में या जिस परिवार में हम रह रहे हैं, वहां पे हमें जो भाषा का ज्ञान मिलता है. क्या हम अपनी उस भाषा का ग्रामर सीखते हैं शुरुआत में? हम 2 साल के अंदर क्या हमारी माँ, हमारे परिवार वाले हमें उस भाषा का व्याकरण पहले सिखाएंगे, या उस भाषा का लेखन सिखाएंगे, या उस भाषा का वाचन सिखाएंगे? तब जाके हम बोल पाएंगे क्या? नहीं, है ना? हम हमारी जो मातृभाषा है वो हम अपने आप ही बोलना सीख लेते हैं, बिना किसी लेखन या वाचन की एक्टिविटी के. या ये ऐसी कोई गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती. क्यों? क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भस्थ अवस्था के दौरान से मातृभाषा को सुन रहा होता है, तब से उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसके अंदर होती है. 2 साल तक अंदर बच्चा बाहर के वातावरण को एब्जॉर्ब करता है, नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है. इसीलिए जिस क्षेत्र में जो बच्चा जन्म लेता है उस क्षेत्र की भाषा उसको काफी अच्छी तरीके से आ जाती है. वो उसको अपने अंदर ढालना स्टार्ट करता है, बिकॉज उसके ब्लैंक स्लेट जो माइंड था, उस माइंड ब्लैंक ब्लाइंड में जो है वो भाषा सबसे पहले प्रिंट हो जाती है, और वही उसकी मेन फाउंडेशन भाषा बनती है. जब वो कोई नई भाषा सीखता है तो वो इसी के आधार पर वो उसकी समझ की भाषा बन जाती है, और उसी के आधार पे वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, राइट? एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वही भाषा को जानेगा और समझेगा, राइट? सो अब हमने स्पीकिंग का देखना है. जैसे ही बच्चा अपने वातावरण में लिसनिंग वाला एक्टिविटी कर लिया, फिर वो स्पीकिंग यानी वो बात करेगा, राइट? फिर वो बोलना स्टार्ट करेगा. जब वो बोलने लगेगा तब ही वो रीडिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, तभी वो रीड करेगा. रीडिंग इज व्हाट? स्पीकिंग. व्हेन यू आर सीइंग समथिंग, कोई चीज देखकर आप जब बोल रहे हो उसको हम स्पीकिंग कहेंगे, रीडिंग कहेंगे. And then after reading, only when you are identifying the symbols of the letters which you have to frame, जब आप जो लेटर्स के सिंबल्स को, अक्षरों की बनावटों को जब आप पहचान पा रहे हो, जो आपको लिखावट के वक्त बनाना है, तभी आप उसे लिख पाओगे. तो रीडिंग के बिना राइटिंग नहीं पॉसिबल है, लिसनिंग के बिना स्पीकिंग नहीं पॉसिबल है, और जब तक ये चारों चीजें अच्छे से नहीं आती, कम्युनिकेशन अच्छी पॉसिबल नहीं है. तो इन चारों चीजों पे फोकस करने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बच्चे की लिसनिंग, बच्चे की स्पीकिंग, बच्चे की रीडिंग और बच्चे की क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए. राइटिंग इस एज लेवल पर शुरुआत में नहीं भी आएगी तो चल जाएगा, लेकिन रीडिंग के लिए, रीडिंग तक पहुंचने के लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग शुड बी इंपॉर्टेंट. And for if you want your child to listen, then you should listen to the child. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मतलब यहाँ पे आपकी क्लासरूम में जो आपका बच्चा है, वो आप चाहते हो कि वो आपकी सुने, तो आपको पहले उसकी सुननी पड़ेगी. ओके, लेट द चाइल्ड स्पीक. You listen to the child first, then when you will speak, the child will listen. Okay, so we have to follow this vice versa. Let us give the opportunity to the child to just explore, to just speak, and then the communication skill will be developed. Next skill is social skill, that is nothing but the intrapersonal skills. The interpersonal skills are those skills where the child understands the main key component of the pre-primary education. ये वो टाइम पीरियड है जहां पर बच्चा जो है अभी अभी जस्ट अपने एनवायरनमेंट से मिलता है. और अपना एनवायरनमेंट कौन सा? वो एनवायरनमेंट जहां पर वो अभी अभी सोशल हुआ है, संसार में कुछ दिन पहले ही वो बच्चा आया है, अपने माता पिता परिवारजनों को समझा है. अब वो संसार के अपने इस अंदरूनी कूप मंडूक वाला संसार, कूप मंडूक मतलब यानी वो कुएं के मेंढक की तरह जहां पर है वो वहीं पर रहना छोड़कर अब वो बाहर निकलना स्टार्ट करता है. ठीक है ना? जिस बच्चे को कूप मंडूक की तरह बना दिया जाता है वो बच्चा सोशल नहीं हो पाता है, वो अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाता है, और अपने अपनी चीजों को दूसरों के साथ कॉपरेट शेयरिंग नहीं कर पाता है. अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनको रिजॉल्व नहीं कर पाता है.
इसीलिए हर एक बच्चे के साथ में सोशल स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बाहरी दुनिया से जुड़े, और इसी के लिए स्कूल बनाया गया है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक छत के नीचे हर प्रकार के जो बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपर इफेक्टिवली ग्रुप्स में मैनेज करना बच्चा सीख जाए, जहां पे बच्चा शेयरिंग सीखे, वहां पे बच्चा केयरिंग सीखेगा, जहां पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और मैनेज करना सीखेगा। ठीक है, यहाँ पे ये अपना स्ट्रक्चर्ड सेटिंग को अंडरस्टैंड करेगा और इसके प्रॉपर नॉर्म्स, अपनी एम्पैथी और अपने सेल्फ रेगुलेशन एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल स्किल्स। जब हम इमोशनल स्किल्स की बात करते हैं, जब बच्चा सोशल होगा तो उसके अंदर इमोशंस आएंगे। अब इमोशंस जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इमोशंस ही हो, इमोशंस कैन बी नेगेटिव एज वेल। Emotions can be frustrative, emotions can be irritating, emotion can be annoying, emotions can be in anger and it can be in excitement। तो इन सारे टाइप के इमोशंस को प्रॉपर वे में लाइफ में बैलेंस करना ही ट्रू लाइफ लीडिंग होता है। आई एम सॉरी, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। सो ट्रू लाइफ लीडिंग होता है। तो हमारा जो ट्रू लाइफ लीडिंग है वो कब होगा, जब हम हमारे इमोशंस को, रेजिलियंस को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है ना। हमारी रेजिलियंस तभी बैलेंस हो पाएगी जब हम हमारे इमोशनल बैलेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे साथ आने वाली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी प्राइमरी एजुकेशनल एस्पेक्ट ही उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। अगर आपको शुरू से चीजों उसे अनुसार आपको पता है या समझ है, तभी आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए एज अ प्री स्कूल एजुकेटर वी हैव टू फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ इमोशनल स्किल्स। Next is the physical skills. When we talk about the physical skills, these are the skills where the fine motor skills and the gross motor skills are there. Physical skills are divided into two parts: fine motor skills and gross motor skills. Fine motor skills are the skills for the growth and development and focused understanding। यहाँ पर जब हम focused understanding की बात करते हैं, यहाँ पर वो चीजें आती हैं जहाँ पर बच्चों की जो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है वो होता है। और जहां पर हम ग्रॉस मोटर स्किल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो सर्वांगीण जो गत्यात्मक विकास है वो होता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है वो पूरी तरीके से जो हमारा विकास होता है वही होता है। जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है उसमें हमारा जो पूरी तरीके से जो विकास होता है वही होता है, और इसी के साथ साथ में हमारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो एस्पेक्ट्स है वो तभी समझ में आता है जब हम इनके ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। ठीक है, जब हम इनके फिटनेस और वेलबींग और इनके फोकस पर अंडरस्टैंड करते हैं तो बच्चों की हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी डेवलपमेंट्स हैं, इनके लिए हम लाइफ टाइम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक, और इसके लिए हमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल नेचर, इन सारी चीजों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव स्किल्स। जब हम क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनकी जो इमेजिनेशन है, इनके जो प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज है, ये तभी हो पाएगा जब हम आर्ट, म्यूजिक, ड्रामेटिक प्लेज, ये सारी चीजें करेंगे जब बच्चा क्रिएटिव होगा। जब बच्चा क्रिएटिव होगा तभी उनकी क्रिएटिविटी जो है वो एनहांस होगी। ठीक है, बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करेगा, इनकी जो एक्सपेरिमेंटल और इनकी मटेरियल थिंग्स है इनको अंडरस्टैंड करेगा, इनके स्टोरीज को डेवलप करेगा और इनके अंदर इमेजिनेटिव प्ले को एंगेज कर सकेगा। ठीक। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम इंडिपेंडेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चों को हम अलग अलग वे में इंडिपेंडेंट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए, बच्चों को जब हम कोई भी चीज की इंडिपेंडेंस देते हैं ना, तब बच्चे को ना रुकावट नहीं महसूस होती, उसके मन में डर नहीं महसूस होता। उस जो अगर आपको रिस्पेक्ट करता है तो वो किसी डर से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, वो आपको रिस्पेक्टफुली, मतलब इंटरनली आपको रिस्पेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू द चाइल्ड। इंडिपेंडेंस डजंट मीन जस्ट गिव देम द ट्रू फ्रीडम। इंडिपेंडेंस मीन्स लेट द चाइल्ड बी डिपेंडेंट ऑन देयर ओन सेल्फ। ओके, बच्चा अपने आप पर आत्मनिर्भर बने, दैट इज इंडिपेंडेंस। ओके, इफ द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, like if the child is putting away his toys,
from the daily routines. Let the child say, okay, if you don't want to play with this, don't play. You should not force. Like if the child wants to play with the teddy bear, and if you're forcing the child to play with a ball, अगर आप बच्चा टेडी बेयर से खेलना चाह रहा है और आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं ये टेडी बेयर गंदा हो जाएगा, आप बॉल से खेलिए अभी। सो अब बच्चा तो टेडी बेयर से खेलना चाह रहा है, पर आप अगर उसको बॉल दे दोगे तो फिर उसका मन नहीं लगेगा उसमें खेलने के लिए, और उसको जबरदस्ती जब उस चीज से खेलना पड़ेगा तो उसकी जो ट्रू इंडिपेंडेंस है, उसकी जो ट्रू रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही तरीके से फोकस्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंज्योरी। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग और इंज्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा जब भी, सॉरी आई एम सेइंग इंज्योरी, इट्स इंक्वायरी। सो जब हम क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी की बात करते हैं तो ये जो एज लेवल होता है बच्चों का, यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम थिंकिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बच्चों की वो जो एक्टिविटी होती है वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कहलाती है, और ये जो एक्टिविटी होती है ये इंक्वायरी बेस्ड लेवल पर अंडरस्टैंड करने वाली एक्टिविटी होती है। यहाँ पर बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन करता है, व्हाई, व्हेन, हाउ, ऐसी एक्टिविटीज पर बच्चा सबसे ज्यादा फोकस करता है। और इनकी जो फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऐसी होती है जहां पर उसकी डेवलपमेंट जो है सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर इसकी सोच, इसकी क्षमता को हमें बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करना है, और इसकी जो भी सोच और इसकी जो भी क्षमता है इसको हमको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। राइट। So this is all about the pre-primary skills and education. Now, let us understand there are how many problems are there in the प्री प्राइमरी एजुकेशन। ये हमने स्किल्स की बात करी। तो जब हम इन स्किल्स को फोकस करते हैं तो देर आर टू मेनी मेनी अ टाइम देर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स और इन चैलेंजेस को समझते हैं, इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर प्रॉब्लम्स आज हम देख लेते हैं।